Hello, everybody. Greetings for the day. I'm Sayukta from All About Skin Wellbeing team, and I'm sure all of you must be keeping good health. We all know that taking good care of our skin is important for more than just our appearance. As the largest organ, your skin becomes the most essential to your overall health. A fungal infection is very common on our skin or nails or scalp, and fungal infections or mycosis are diseases caused by a fungus, yeast, or mold. Mild fungal infection and mild fungal skin infections can look like a rash, which can be really itchy and annoying. So let's connect today with our skin expert, Dr. Priyanka Thurke, live from Padharpur to enlighten us on the topic of fungal infection. Dr. Priyanka is a dermatologist at Lifeline Super Speciality Hospital, Pandharpur, and she did her MBBS from renowned medical college, Mahatma Gandhi Institute of Medical Sciences, Sevagram, Wardha, and pursued her MD in dermatology, venereology, and leprosy from the same institute. She also holds a DNB degree. She has special interest in the field of leprosy as she has worked for 2 years at the Leprosy Mission Hospital, Allahabad, and also did a refresher course in leprosy. She performs almost all cosmetological procedures with excellent results, and she believes clinical skills and procedural skills should go hand in hand. A very warm welcome to you, Dr. Priyanka. It's a pleasure to have you with us. Thank you. Thank you so much for such a nice introduction. Yeah. We are going to talk about फंगल इन्फेक्शन और ये वो मौसम है गर्मी मॉनसून ये वो समय है सबसे ज्यादा हमारी स्किन पे ह्यूमिडिटी और हॉट टेम्परेचर का असर दिखता है बहुत ज्यादा स्वेट एक्यूमुलेट होता है और कई बार फंगल इन्फेक्शन की खबरें उसके केसेस इस वक्त सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं तो सबसे पहले तो डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे ये फंगल इन्फेक्शन है क्या और कब सबसे ज्यादा हो सकते हैं Yes. I would like to tell you fungal infections in local language we call it as burshi. Burshi means fungus. So can I speak in Marathi because most of my listeners are yes Marathi. doctor Yeah. So fungal infection म्हणजे बुरशी. बुरशी लागणे जसं अन्नाला बुरशी लागते तशाच पद्धतीचं हे इन्फेक्शन ह्युमन बॉडीवर सुद्धा होतं आणि त्याला आपण फंगल इन्फेक्शन असं म्हणतो. याचे बरेच प्रकार असतात. डर्मॅटोफायटोसिस, कॅन्डिडियासिस, देन पिट्रियासिस व्हर्सिकुलर ह्या अशा वेगवेगळ्या पद्धतीच्या फंगस असतात. मला विचारण्यात आले की फंगल इन्फेक्शन बेसिकली कशामुळे होतं आणि कधी होतं. सो ज्यावेळी थोडं वातावरणामध्ये ह्युमिडिटी असते, ओलसरपणा असतो, अशा वेळी फंगल इन्फेक्शन हे होतं. सो या सीझन मध्ये लाईक आता मान्सून सुरू झालेला आहे आणि त्या व्यतिरिक्त याच्या आधी ज्यावेळी गरमी फार असते, उन्हाळा फार असतो, घाम जास्त येतो, अशा सीझन मध्ये बुरशी ही जास्त प्रमाणामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. सो फंगल इन्फेक्शन ऑल्सो आपल्याला या सीझन मध्ये जास्त प्रमाणात बघायला मिळतं. बिल्कुल तो इस सीजन में इस मौसम में ज्यादा केसेस बढ़ जाते हैं फंगल इन्फेक्शन के तो किस तरह से फंगल इन्फेक्शन हो सकता है डॉक्टर हमेशा कहते हैं ना खासकर मेडिकल फील्ड में प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर तो क्या कोई प्रिवेंटिव मेजर हम खास तौर पे इस मौसम में ले सकते हैं जिससे फंगल इन्फेक्शन से बचा जा सके Yes, yes. So we can prevent fungal infections. So most important thing is hygiene, swachhata. So what we have to do, we have to keep ourselves clean. We have to keep ourselves dry. जसं आपण ऑलरेडी सांगितलेलं आहे की ओलसरपणा आणि घाम याच्यामुळे फंगल इन्फेक्शन होतं. सो प्रिव्हेंटिव्ह मेजर इज की आपल्याला ओलसरपणापासून वाचायचंय आणि घामापासून वाचायचंय. मग हे आपण कसं करू शकतो? व्हॉट वी कॅन डू? So we have to change our clothes at least twice a day. Wear loose clothes, ढीले ढाले कपडे घाला. Then many people have habit of wearing tight clothes, tight undergarments. So avoid that. Tight undergarments घालू नका. त्या व्यतिरिक्त use cotton dresses. So undergarments जे आहे जर ते तुम्ही कॉटनचे वापरले so it will be good for you. Then टेक अ बाथ ट्वाइस डेली दिवसातून 2 वेळा आंघोळ करा. आंघोळ झाल्यानंतर सुद्धा जे तुमचे इंटरट्रिजिनस एरियाज आहेत. इंटरट्रिजिनस एरियाज मीन्स व्हॉट? दोज एरियाज विच आर स्वेटेड लाईक एक्झिला. काखेमध्ये आणि जांघेमध्ये इन्फेक्शन होण्याचे चान्सेस हे जास्त प्रमाणात असतात. सो ते एरिया स्पेसिफिकली तुम्हाला ड्राय ठेवायचे आहे. Another thing I would like to tell you that it is highly contagious. म्हणजे एका पेशंटच्या काही वस्तू दुसऱ्या पेशंटने वापरल्या इन्फेक्टिव्ह पेशंटच्या तर त्या दुसऱ्या पेशंटला सुद्धा होण्याचे चान्सेस हे खूप जास्त प्रमाणात वाढतात. सो ट्राय अवॉइड युजिंग अदर्स क्लोथ्स. दुसऱ्यांचे कपडे यूज करणं थोडं अवॉइड करा. घरी जर कुणाला इन्फेक्शन असेल सो
बऱ्याचदा पेशंट सांगतात की मॅम आमचे कपडे आम्ही वेगळेच ठेवतो, आमची साबण आम्ही वेगळेच ठेवतो, तरी सुद्धा बाकीच्या माझ्या घरच्या मेंबर्सला हा त्रास होतोय. सो त्याचं बेसिक रिझन काय असतं, जरी तुम्ही तुमचे कपडे वेगळे ठेवत असता तरी ज्यावेळी तुम्ही ते वॉश करता ते तुम्ही एकत्रच वॉश करताय. सो अल्टिमेटली यू आर गिव्हिंग चान्स टू अ फंगस टू ग्रो. सो अवॉइड दॅट. Towels also you have to avoid. You have to keep your towels separate. बिल्कुल, तो ये कुछ वो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिन्हें हम अपना सकते हैं और एक तरह से बच सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से। और जिस तरह से कहा आपने बताया कि दिस इज हाईली कंटेजियस, तो एक से दूसरे को फैल सकता है। एक फैमिली में कई बार ऐसा होता है, किसी को हो जाता है तो दूसरों मेंबर्स भी एट हाई रिस्क रहते हैं। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि खास तौर पे कपड़े, टॉवल, ये सब हम शेयर ना करें, लूज कपड़े पहने और जो प्रिवेंटिव मेजर्स डॉक्टर ने बताए हैं उनको फॉलो करें। डॉक्टर, क्योंकि आमतौर पे जब भी कोई स्किन इन्फेक्शन होता है तो उसमें रैश होता है, रेडनेस हमें दिखता है और बहुत ज्यादा इचिंग होती है उस जगह पर, लीशंस पे। ऐसे में फंगल इन्फेक्शन को किस तरह से हम समझे कि जो इस वक्त हमें हो रहा है स्किन पे वो फंगल इन्फेक्शन ही है? क्या इसके सिम्टम्स है या क्या साइंस है? किस तरह से हम इन्हें रिकॉग्नाइज कर सकते हैं एज अ लेमन? सी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि हमें इचिंग कौन से बॉडी पार्ट पे हो रही है। फंगल इन्फेक्शन जो है वो स्पेसिफिकली इंटरट्रिजिनस एरिया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, जहाँ पे स्वेटिंग ज्यादा होती है उस एरिया से स्टार्ट होता है। सो जैसे कि एक्जिला, काफ से स्टार्ट हो सकता है। बहुत से पेशेंट्स को ग्रॉइंस में होता है, जांघों के बीच में, या इंफ्रामैमरी एरियाज, ब्रेस्ट के नीचे जहाँ पसीना बहुत आता है फीमेल्स को, उस एरिया में ये इन्फेक्शन स्टार्ट होता है। सेकेंड थिंग, जो इन्फेक्शन है उसमें ईचिंग बहुत ज्यादा होती है। ईचिंग इज द फर्स्ट सिम्टम। आप कभी भी देखेंगे कि आपको अगर बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है इस पार्ट में, इनिशियली रैश नहीं समझ में आती, शुरुआत में सिर्फ ईचिंग होती है, then also you have to think that I might have got this fungal infection. First thing. Second thing, बहुत से पेशेंट्स बोलते हैं गोल गोल चट्टे आते हैं। So the annular lesions you can see, so it also suggests fungal infection. Second thing, बहुत बार ये होता है कि घर में अगर किसी को ऑलरेडी इस तरह का इन्फेक्शन है, सो अगर उसके कोई कपड़े यूज करता है तो उस पेशेंट को बॉडी के किसी भी पार्ट में ही इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। सो if you get itching, you get annular lesions, then just think of fungal infection first. बहुत बार ये होता है कि बहुत पेशेंट्स को लॉन्ग स्टैंडिंग से ये फंगल इन्फेक्शन होता है और उसके ऊपर वो पेशेंट कोई स्टीरॉइड क्रीम लगा लेते हैं। सो इन दोस केसेस जो एनुलर पैचेस होते हैं, रिंग लाइक जो की चट्टे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। उन पेशेंट में सिर्फ इचिंग होती है, ड्राई इचिंग होती है, और अलॉन्ग विद दैट कुछ पस भर के फोड़े आ जाते हैं। बहुत बार हमें लगता है ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें पेन हो रहा है, फॉलिकुलाइटिस है, सो वी टेक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली। बट द प्रॉब्लम इज वो फंगल इन्फेक्शन काफी डीप में चला जाता है एंड इट प्रेजेंट्स एज बैक्टीरियल साइंस एंड सिम्टम्स। सो इन सारे टाइप्स की वजह से पेशेंट इस तरह से आपके पास प्रेजेंट कर सकता है एज अ फंगल इन्फेक्शन। सो रीचिंग इज द फर्स्ट टाइम। या I'm very glad that you raised the issue of how we are so obsessed with over-the-counter medication, और हम कई बार टॉपिकल स्टेरॉइड्स यूज करने लगते हैं जिसकी हमें जानकारी ही नहीं होती है, क्योंकि केमिस्ट इस तरह से हमें इंफॉर्मेशन देते नहीं है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में, बिकॉज ओवर-द-काउंटर मेडिकेशन इज सो इजिली अवेलेबल, अप्रोचेबल, एक्सेसिबल। तो फंगल इन्फेक्शन या कोई भी दूसरा इन्फेक्शन हो तो सबसे एक आम हरकत जो हम करते हैं वो ये है कि हम किसी केमिस्ट शॉप में जाते हैं, हम बोलते हैं हमको इन्फेक्शन हो गया है, और हम कोई क्रीम लेते हैं और वो लगाने लगते हैं। कई बार वो स्टेरॉइड बेस्ड होते हैं, कॉम्बिनेशन क्रीम्स होते हैं, और हम उन्हें लगाते ही रहते हैं। व्हाट could be the harmful effects of using those creams or topical preparations, doctor? First of all, there is big no to take over the counter medication for this fungal infection. For any infection I can say, but for fungal infection I said big no to take over the counter medication, because what happens, क्या होता है जब हम over the counter medications लेते हैं, उसमें एक एंटी फंगल एजेंट होता है, बट उसके साथ हमेशा कुछ तो प्लस में होता है, and patients take that cream because it gives faster results. So अगर जर कुठल्या क्रीम मध्ये, like I'll just give an example, one content is terbinafine. Terbinafine is an antifungal agent. उसके साथ वो terbinafine plus कर देते हैं, so they give steroid in that. Steroid, what steroid do? Steroid जो आहे तो itching कमी करतो, खाज कमी करतो, and patient feels better. 2-3 दिवसासाठी ते रॅश सुद्धा कमी होते. सो वी फील की आपलं फंगल इन्फेक्शन गेलंय, बट व्हॉट स्टेरॉइड्स एक्झॅक्टली डू,
ते फक्त इन्फेक्शन लपवतं, ते कमी करत नाही. आणि 4-5 दिवसानंतर ज्यावेळी तुम्ही ती क्रीम बंद करता, त्यानंतर ना तुम्हाला लक्षात येतं की इन्फेक्शन हे खूप जास्त प्रमाणात वाढलंय. आणि मला एक अजून सांगावं वाटेल की ज्यावेळी पेशंट्स ट्रीटमेंट घेतात, सो 4-5 दिवसामध्ये त्यांचं इन्फेक्शन कमी झाल्यानंतर ना ते ट्रीटमेंट बंद करतात. आणि जे हे डर्मॅटोफायटॉसिस आहे किंवा फंगस आहे, हे युजुअली स्किनच्या सुपरफिशियल लेयरवरच राहतं. म्हणजे इट कॅन स्प्रेड टू ऑल युअर बॉडी, बट इट विल नॉट गो डीप इनसाइड द स्किन. सो दिस इज द peculiarity ऑफ फंगल इन्फेक्शन. इट इज वन गुड थिंग. पण जर तुम्ही स्टिरॉइड यूज करताय, सो व्हॉट स्टिरॉइड्स डू, वरच्यावर तुमचं इन्फेक्शन आणि सिम्पटम्स जे आहेत ते कमी करतं, पण त्याची डेप्थ जी आहे ती वाढवते. त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम हा होतो की ज्यावेळी तुम्ही त्रासून तुमच्या क्वालिफाईड डर्मॅटॉलॉजिस्ट कडे जाता, सो तुम्हाला ट्रीटमेंट ही जास्त दिवसांकरता घ्यावी लागते, कारण इन्फेक्शन ऑलरेडी डीप गेलेलं आहे. आणि दुसरी गोष्ट, जे डॉक्टर्स तुम्हाला ट्रीटमेंट देतात कन्व्हेन्शनल ट्रीटमेंट, ती सुद्धा तुमच्या केसमध्ये काम करत नाही. सो तुमचा हे ऍक्च्युअली तुमचा खर्च सुद्धा वाढतो, तुमचं फ्रस्ट्रेशन वाढतं आणि तुमचं ड्युरेशन ऑफ ट्रीटमेंट सुद्धा वाढते. सो आय सजेस्ट की ओव्हर द काउंटर ड्रग्स घेऊ नका. मीट युअर क्वालिफाईड डर्मॅटॉलॉजिस्ट अँड टेक ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. बिल्कुल, तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन के लिए एक बिग नो नो है एंड प्लीज डोंट फॉल फॉर क्वैक्स, डोंट फॉल फॉर ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, गो टू द राइट पर्सन व्हिच इज अ क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट. तो कई बार हम बहुत ज्यादा एनर्जी, टाइम, मनी और सबसे इम्पोर्टेंटली अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज करते हैं इन सब चीजों में, लेकिन वो हमें नहीं करना है, हमें जाना है क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. ना डॉक्टर, आपने बताया कि कई बार सिम्टम के नाम पे सिर्फ इचिंग होती है और कई बार शुरुआती इचिंग से होती है. इचिंग एक प्रीडोमिनेंट सिम्टम है. ऐसे में इंसान जिसे फंगल इन्फेक्शन है या नहीं, उसे ये अभी तक नहीं पता, वो किस स्टेज पे डॉक्टर के पास जाए? जब बहुत ज्यादा इचिंग हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है इच और बहुत अनोइंग हो रहा है, तभी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या उसके बाद फर्दर थोड़ा वेट करके जाना चाहिए? व्हिच इज द राइट टाइम टू गो एंड अप्रोच अ डॉक्टर? सी, अगर सिर्फ इचिंग हो रही है इन इंटररीजनस एरिया, ही कैन वेट फॉर 2 to 3 days मोर, बिकॉज कैसा है, इचिंग की कई रीजंस हो सकते हैं. बहुत बार अर्टिक एरिया की वजह से भी इचिंग होती है. लाइक किसी चीज की एलर्जी हो जाए, उसकी वजह से इचिंग हो सकती है. अगर किसी ने कोई अलग ब्रांड के क्लोथ्स यूज किए हैं, उसकी वजह से इचिंग होना इज क्वाइट पॉसिबल. सो वो अवॉइड कर सकता है, वो अंडरगारमेंट चेंज करके देख सकता है, ही कैन वेट एंड ही विल गेट रिलीफ. लेकिन अगर आपकी इचिंग है और साथ में आपको एनुलर लीजन, गोल गोल ऐसे चट्टे आ रहे हैं, सो डोंट वेट, जस्ट मीट योर डर्मेटोलॉजिस्ट. सो उस स्टेज में आपको वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वेट करते रहेंगे, सो व्हाट विल हैपन, दिस इन्फेक्शन विल इंक्रीज इंक्रीज एंड इंक्रीज. उसकी वजह से आपका ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ेगा और आपका प्रॉब्लम भी बढ़ेगा. yes. बिल्कुल, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाएँ. कई बार ये होता होगा, आई एम श्योर डॉक्टर, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत आम है ओवर द काउंटर मेडिकेशन या इन्फ्लुएंसर जैसे कि आजकल बहुत है सोशल मीडिया पे, और सबके पास एक ना एक क्विक फिक्स ज़रूर है हर समस्या का. तो कई बार फंगल इन्फेक्शन को लेकर भी वो कुछ घरेलू नुस्खे बताते हैं लोग, वो सब ट्राई करते हैं, ओवर द काउंटर क्रीम्स ट्राई करते हैं, और जब चीज़ें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, दैट्स व्हेन दे गो एंड अप्रोच अ डॉक्टर. तो ऐसे में क्या जो ट्रीटमेंट की लेंथ है वो और ज़्यादा बढ़ जाती होगी? क्या सिर्फ फंगल इन्फेक्शन जो बहुत जल्दी शायद ठीक हो जाता, वो अब बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी ले लेगा? Yes, definitely, definitely. Very good point. So what happen? पेशेंट्स को जैसे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, उनको पता भी रहता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है. वो कहीं क्वैक्स से या फिर किसी ने घरेलू नुस्खे लगा के आ जाते हैं. What happens? ऑलरेडी स्किन के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया है, आपकी स्किन ऑलरेडी इरिटेटेड है. इस स्टेज में अगर आप और ज्यादा इरिटेंट लगाते हो, तो स्किन रिएक्ट, और इतनी ज्यादा तरह से रिएक्ट कर जाती है कि बहुत बार स्किन पूरी तरह रेड हो जाती है, बर्न हो जाती है, जल जाती है. इतना पेशेंट को पेन होता है कि वो चल भी नहीं पाते. अगर वो ग्राउंड्स के बीच में ऐसा कोई इरिटेंट क्रीम लगा लेते हैं, तो वो चल भी नहीं पाते हैं, और उस स्टेज में दे प्रेजेंट टू अस. सो व्हाट हैपेंस, सबसे पहले फंगल इन्फेक्शन तो बाजू में रह गया, पहले हमें उसके जो इरिटेशन हो गया है, वी कॉल इट एज इरिटेंट कॉन्टॅक्ट डर्मेटायटिस. सो जे इरिटेंट कॉन्टॅक्ट डर्मेटायटिस झालेला आहे, त्याला आपल्याला ट्रीट करावं लागतं. इट टेक्स 7 to 10 days. 7 ते 10 दिवस त्याला ट्रीट करण्यामध्ये निघून जातात. त्याच्यानंतर ना तुम्हाला फंगल इन्फेक्शनचं ट्रीटमेंट हळूहळू स्टार्ट करावं लागतं. सो फंगल इन्फेक्शनच्या ट्रीटमेंटसाठी जो ड्युरेशन लागतोय, तो तर आपल्याला कव्हर करायचाच आहे. त्या व्यतिरिक्त तुम्ही हे इरिटेशन करून ठेवल्यामुळे हे तुम्हाला एक्स्ट्रा मेडिसिन्स अजून 8 ते 15 दिवस घ्यावे लागतात. सो तुमचं ड्युरेशन पण वाढतो आणि खर्च सुद्धा वाढतो डेफिनेटली, आणि फ्रस्ट्रेशन सुद्धा वाढतं.
So don't do that. और जब एक पेशेंट आपके पास आते हैं तो किस तरह से उनका ट्रीटमेंट होता है, क्या लाइन ऑफ मैनेजमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहता है, क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन्स अवेलेबल है फंगल इन्फेक्शन के लिए? Yes. So many times patient just ask की मॅम खूप इचिंग होतीये, खूप खाज होते आहे, आम्हाला कुठलं तरी इंजेक्शन द्या किंवा इंजेक्शनची ट्रीटमेंट द्या. सो आय वुड लाईक टू टेल इंजेक्शनची कुठलीही ट्रीटमेंट नाहीये फॉर सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन्स. त्याच्यासाठी टॅबलेट्स आहे, क्रीम्स आहे, सोप्स आहे आणि पावडर्स सुद्धा अवेलेबल असतात. So what I do or what others dermatologists also do, I tell patients that treatment will be of at least 3 months. 3 महिने तुम्हाला ट्रीटमेंट करायची आहे, ज्याच्यामध्ये आपण अँटी फंगल मेडिसिन सुरू करतो आणि त्याचं सुद्धा एक डेफिनेट पॅटर्न आहे. लाईक तुम्ही ट्रीटमेंट कुणाला देताय? तुम्ही ट्रीटमेंट लहान मुलांना देताय, एक यंग एज ग्रुप मध्ये देताय की ओल्ड एज ग्रुपच्या पेशंट्सला देताय? किंवा यंग एज ग्रुप मध्ये पण तुम्ही प्रेग्नेंट फिमेलला देताय, लॅक्टेटिंग मदर्सला देताय की नॉर्मल इंडिव्हिज्युअलला देताय? अकॉर्डिंगली तुमची ट्रीटमेंट ही चेंज होते. 3 मंथ्स ट्रीटमेंट म्हणजे 3 महिने सारखं ट्रीटमेंट चालतं असं नाहीये. पेशंटला पहिल्या 15 दिवसामध्येच रिझल्ट दिसायला लागतात. बऱ्यापैकी विजिबल रिझल्ट असतात, बऱ्यापैकी त्यांचे रॅश कमी होते, त्यांची इचिंग कमी होते आणि अशा स्टेजला पेशंट मेडिसिन्स हे स्टॉप करतात. सो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक व्हॉट ऑल पेशंट्स डू आणि हे मला सगळ्या पेशंट्सला सांगायचं आहे या प्लॅटफॉर्मवर की जरी तुमचं इन्फेक्शन कमी झालंय तरी डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसारच मेडिसिन्स बंद करा, स्वतःहून मेडिसिन्स बंद करू नका. कारण जर तुम्ही मेडिसिन्स बंद केले तर पुढच्या 15 दिवसानंतर तुम्हाला परत तेच इन्फेक्शन होणार आहे आणि त्यानंतर तुम्ही डॉक्टर्सला ब्लेम करणार आहात की मॅडम ट्रीटमेंटनी बरं झालं होतं पण लगेच परत झालं. सो ट्रीटमेंट ही 3 महिन्याकरिता चालते. सुरुवातीला काही दिवस आपण गोळ्यांपासून स्टार्ट करतो. देयर आर फ्यू मेडिसिन्स लाइक आयट्रोकोनोझोल, टर्बिनाफिन, लुसिओफिल्बिन. दीज आर फ्यू मेडिसिन्स ज्या आपल्याला द्याव्या लागतात. हळूहळू ज्यावेळी आपल्याला क्लिनिकल रिस्पॉन्स दिसतो सो आपण टॅबलेट्स ह्या हळूहळू बंद करून त्याच्यानंतर फक्त टॉपिकल क्रीम्स ज्या आहेत त्याच्यावर पेशंट्सला शिफ्ट करतो. सो टॉपिकल क्रीम्स, सोप आणि पावडर्स आणि ॲज वेल एज टॅबलेट्स. These are the line of treatment for fungal infection. बिल्कुल, तो बहुत जरूरी है कि हम सबसे पहले एक डॉक्टर के पास जाएं, क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, वो हमें जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे हम पूरी तरह से कंप्लीट करें, उसे बीच में न छोड़े। और सही में ये बहुत आम होता है, हमको थोड़े से भी अगर सिम्टम्स से रिलीफ मिल जाता है तो हमको लगता है कि बस अब तो आराम मिल गया, अब ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। और शायद यही वजह है डॉक्टर की रीअकरेंस बहुत होता है फंगल इन्फेक्शन के केस में, क्योंकि इलाज पूरा नहीं ले पाते हैं। क्या रीअकरेंस, क्योंकि जिनको एक बार हो जाता है उनको बार बार होता है, ये बहुत बार देखने में आया, तो क्या उसका एक ही रीजन है कि ट्रीटमेंट वो पूरी तरह से नहीं कंप्लीट करते हैं या कोई दूसरे भी इसके रीजन हो सकते हैं? Yes, दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंप्लायंस, जैसे अगर 3 मंथ्स का ट्रीटमेंट बोला है लेकिन उन्होंने नहीं लिया है तो ये एक चीज होती है. सेकंड टाइम पेशेंट्स क्या करते हैं, अगर पेशेंट को 3 मंथ्स ट्रीटमेंट लेने बोला है तो व्हाट दे डू, उनको पहले 15 डेज में रिजल्ट आ जाते हैं. सो दे डोंट कम अप अगेन टू द डर्मेटोलॉजिस्ट. वो फिर से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं आते आणि ज्या ट्रीटमेंटने त्यांना रिजल्ट आलेले आहेत तेच ट्रीटमेंट ते कंटिन्यू करतात फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स. सो त्याच्या वेळी काय होतं, जसं बॅक्टेरियाचं रेझिस्टन्स असतं तसं फंगसचं सुद्धा रेझिस्टन्स आलेलं आहे आणि अशा केसमध्ये सुरुवातीला जे मेडिसिन्स तुम्हाला तुमच्यावर वर्क करतात आहे, जर तुम्ही ते कंटिन्युअसली घेताय तर ते मेडिसिन्स तुमच्यावर वर्क करत नाही. सो रेझिस्टन्स अशा पद्धतीने येतं. थर्ड थिंग, बऱ्याचदा जे पेशंट्स डायबेटिक असतात किंवा इम्युनो कॉम्प्रोमाइज असतात, कुठल्याही कारणाने त्यांची इम्युनिटी कमी झालेली आहे, अशा पेशंट्स मध्ये सुद्धा प्रत्येक मेडिसिन्स ही वर्क करत नाही. So we have to formulate the plan accordingly. Every patient is different, every infection is different, so treatment is also different. Though drugs are same, drugs जरी सारखे असले तरी त्याला कुठल्या कॉन्सन्ट्रेशन मध्ये यूज करायचे, किती ड्युरेशन साठी यूज करायचे, कधी स्टॉप करायचे, कधी दुसऱ्या मेडिसिन मध्ये शिफ्ट करायचे, हे तुमचे डर्मेटोलॉजिस्ट ठरवत असतात आणि ह्याच्यानुसार आपण रेझिस्टन्स हा कमी करतो. So compliance is not the only factor which is responsible for resistance. Other factors are also there. राइट. स्किन पर तो फंगल इन्फेक्शन हो ही सकता है, नेल्स पर भी या स्कैल्प पे भी फंगल इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर, उसके बारे में हम चाहेंगे थोड़ा आप बताएं. Yes. So superficial fungal infection, I have already told you earlier also that it is dermatophytic infection. What does dermatophyte mean? Dermatophyte चा अर्थ काय आहे? आपल्या स्किन मध्ये एक केराटिन नावाची लेयर असते, केराटिनाइज्ड लेयर. सो जिथे जिथे केराटिनाइज्ड लेयर आहे तिथे हे इन्फेक्शन होऊ शकतं. So keratinized structures कुठले कुठले आहे? One is skin, second is nail and third is hair. So इथे स्किन वर, नेल वर आणि हेअर्स वर या तिन्ही ठिकाणी हे फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं. सुरुवात ही स्किन पासून होते.
बट नेल्स इज द हार्डेस्ट स्ट्रक्चर. जर तुम्हाला खूप लॉंग स्टँडिंग आजार असेल, फंगल इन्फेक्शन असेल, तुम्ही ट्रीटमेंट घेतलेलं नसेल, त्या व्यतिरिक्त तुम्ही जर डायबेटिक असाल किंवा तुमची इम्युनिटी कमी झालेली असेल, अशा केसमध्ये तुमच्या नेल्सला इन्फेक्शन होऊ शकतं. स्कॅल्पचं किंवा हेअरचं जे इन्फेक्शन आहे हे मोस्टली लहान एज ग्रुपमध्ये म्हणजे चिल्ड्रन मध्ये होऊ शकतं, ऍज वेल ऍज खूप ओल्ड एज मध्ये सुद्धा होण्याची शक्यता आहे. जे नॉर्मल आहे 20 to 40 किंवा 50 चा एज ग्रुप आहे, ज्यावेळी तुम्हाला स्वेटिंग खूप जास्त होत आहे, तुम्ही डेली हेल्मेट वेअर करताय किंवा तुम्हाला खूप स्वेटिंग होत आहे, तुम्ही व्यवस्थित क्लीन करू शकत नाहीये तुमचे हेअर्स, त्यावेळी तुमच्या केसांमध्ये सुद्धा इचिंग होऊ शकते आणि यू कॅन गेट द टीनिया कॅपिटिस इन्फेक्शन इन द स्कॅल्प ऑल्सो. अदर दॅन दॅट, दाढीचे हेअर्स मी ऑलरेडी सांगितले की इट इज हायली कंटेजियस. सो तुम्ही जर कुठल्या बार्बर शॉप मध्ये जाताय आणि समजा व्यवस्थित क्लीन इन्स्ट्रुमेंट तुमच्यावर यूज केले गेले नाही, so you can get infection here also in your beard and mustache. तो बहुत जरूरी है कि हम इन बातों का भी ध्यान रखें और अगर नेल्स पे या स्कैल्प पे या बियर्ड एरिया में अगर फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो अगेन प्लीज डोंट इग्नोर इट, गो एंड कंसल्ट अ डॉक्टर. नाउ डॉक्टर, टॉकिंग अबाउट नेल्स, क्या नेल फंगल इन्फेक्शन अगर हो तो ट्रीटमेंट का जो ड्यूरेशन है वो ज्यादा लंबा हो जाता है या बदल जाता है? क्या करना चाहिए अगर नेल में फंगल इन्फेक्शन है? Definitely. First of all, get it diagnosed that it is fungal infection, because many times patients come to us that man nail में fungal infection हो गया है. So first of all, just confirm with the dermatologist वो fungal infection ही है या कुछ और है. And as you know, nail is the hardest thing. बहुत hard होता है skin के comparatively. So जैसे nail में infection होना भी बहुत कम, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है नेल में डायरेक्टली इन्फेक्शन होने की, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका ट्रीटमेंट भी काफी लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है क्योंकि पेनिट्रेशन ही नहीं हो पाता है मेडिसिन का. सो व्हाट वी सजेस्ट, अगर फिंगर नेल्स का इन्फेक्शन है तो वी हैव टू कंटिन्यू मेडिसिन एटलीस्ट अप टू 6 months, एंड अगर टो नेल्स का इन्फेक्शन है तो वी हैव टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट फॉर एटलीस्ट 1 year. लेकिन ये 1 year में हम आपको कंटिन्यू मेडिसिन नहीं देंगे, टैबलेट्स हम कंटिन्यूअसली नहीं देते हैं, we give it in a pulse dose, because जैसे मेडिसिन ड्रग्स का इफेक्ट है वैसे उसका साइड इफेक्ट भी है. सो वी मैनेज बोथ द थिंग्स. हम मेडिसिन जो देते हैं वीक में महीने में सिर्फ 1 week के लिए देते हैं, देन वी गो अहेड ओनली विद द टॉपिकल ट्रीटमेंट, बट यू हैव टू कंप्लाई ओवर दैट. आपको 6 महीने लेना है, सो यू गेट cure of the your nail infections. And talking about fungal infection on scalp, बच्चों में बहुत आम देखने को मिलता है, तो वो क्या होता है, किस तरह से बच्चों का हम ध्यान रखें या ट्रीटमेंट कराएं? बेसिकली बच्चों में भी ये होता है, हम ऑयल बहुत ज्यादा अप्लाई कर लेते हैं और वॉश उतने फ्रीक्वेंटली नहीं करते हैं. वॉश अगर करते भी हैं, अगर बॉयज में ऐसा होता है कि डेली हम लोग वॉश करते हैं, लेकिन वी डोंट यूज शैम्पू और एनी थिंग टू क्लीन द स्कैल्प. सो बहुत बार फंगस किस जगह होगी जहाँ पे गीलापन ज्यादा है. तो अगर बालों में ऑलरेडी डर्ट आहे, केसांमध्ये ऑलरेडी घाण आहे आणि त्याच्यावर जर का तुम्ही फक्त पाणी ओतताय, तर तुम्ही त्याला अजून मॉइस्ट करताय, अजून ओलसर करताय. अशा केसेसमध्ये फंगल इन्फेक्शन स्कॅल्पमध्ये होण्याचे चान्सेस जास्त आहेत. स्कॅल्पमध्ये फंगल इन्फेक्शन हे 2 प्रकारचे असतात, एकदा इन्फ्लेमेटरी टाइप आणि नॉन इन्फ्लेमेटरी टाइप. जर इन्फ्लेमेटरी टाइप असेल तर पेशंटला खूप सगळे पस भरून फोडे येतात, केस गळायला सुरुवात होते आणि एक बोगी स्वेलिंग येते, एक अशी जाडसर अशी सूज तयार होते लहान मुलांमध्ये. जर अशा पद्धतीचं पिक्चर असेल तर जस्ट मीट युअर डर्मेटोलॉजिस्ट. सेकंड थिंग इज ब्लॅक डॉट टाइप, ज्याच्यामध्ये इन्फ्लेमेशन नसतं पण एक छोटे छोटे असे काळे काळे असे डाग आणि एक चट्टा तयार होतो. अशा पद्धतीचं सुद्धा लक्षण दिसत असेल, सो गो अँड मीट युअर डर्मेटोलॉजिस्ट. सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस इन चिल्ड्रन. बिल्कुल, तो अगेन एक और मिथ जो है वो बर्स्ट होता है हम लोग को. अदरवाइज हमारी सोसाइटी में ये भी बहुत चलन है कि सर पे खूब सारा तेल लगाओ और बहुत देर तक उस तेल को रखो, और अगर हम बाल धोते भी है, कई घरों में ऐसा होता है, तो शैम्पू या कोई भी इस तरह के एजेंट का यूज नहीं होता, सिर्फ पानी से बाल धो दिया जाता है. तो ऐसे में डेफिनेटली, क्योंकि मॉइस्चर होगा वहां पर, तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं. डॉक्टर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन जो है ये हाईली कंटेजियस भी है, ये फैल भी सकता है, और फैमिलीज में किस तरह से हम ध्यान रखें. कई बार तो पता ही नहीं होता कि किसी मेंबर को फैमिली में फंगल इन्फेक्शन है,
और ऐसे में खास तौर पे इस मौसम में हम क्या सावधानी बरत पाते हैं? लेकिन फैमिली तो फिर भी एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, अगर पता है नहीं भी पता है तो हम कुछ चीजें कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है जो इस तरह के एरियाज है, जिम हुआ, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, एक ही बार को कई लोगों ने टच किया है, हो सकता है किसी को उसमें से फंगल इन्फेक्शन हो। तो दोनों ही केसेस में जब हम एक कंट्रोल एनवायरनमेंट हो जैसे फैमिली में या फिर बाहर, हम फंगल इन्फेक्शन से खास तौर पे इस मौसम में किस तरह से बच सकते हैं कि वो फैले ना? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर फैमिली में भी इन्फेक्शन है या फैमिली के बाहर भी आप जहाँ पे भी जाते हो, हमें नहीं पता किसको इन्फेक्शन है, सो प्रिवेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हैंड वॉशिंग। आप कहीं भी बाहर से आ रहे हो, सबसे पहले आपके हैंड वॉश आपने करने चाहिए। सेकेंड थिंग, अगर आप जिम से जाकर आ रहे हो, इमीडिएटली टेक अ बाथ। सो दिस थिंग यू कैन डू। अगर फैमिली में किसी को है, अगर जॉइंट फैमिली है, आपको नहीं पता घर में किसको इन्फेक्शन है, तो व्हाट यू कैन डू, आप अपने कपडे अलग से रख सकता हो, तुम्ही तुमचे कपडे वेगळे ठेवायचे आहेत। दुसरी गोष्ट, आता जसं मॉन्सूनचा सीझन आहे, पाऊस असतो, कपडे वाळत नाही, अशा वेळेस तुम्ही काय करा, आयरन क्लॉथ्स अगर आप यूज कर सकते हो, प्रेस करून गरम हे कपडे जर तुम्ही वापरले तर वेल एंड गुड। दिवसातनं 2 वेळा तुम्ही कपडे चेंज केले पाहिजेत। बऱ्याचदा जर तुम्ही बाहेरून भिजून आले आहात पावसामध्ये, इमिडिएटली तुम्ही कपडे चेंज करा। तुमचे इंटरटिजिनस एरियाजला ड्राय ठेवा। तुमचे अंडरगार्मेंट्स तुम्ही दिवसातनं 2दा बदला। ह्या गोष्टी तुम्ही करू शकता आणि घरी असताना ढिले-ढाले कपडे घाला, हे मला सांगावं वाटतं। बिल्कुल, बहुत छोटी-छोटी सी बातें हैं, लेकिन ये छोटी-छोटी बातें जब हम ध्यान में रखते हैं, तो डेफिनिटली हम अपने आप को बचा सकते हैं फंगल इन्फेक्शन से। हमारी एक व्यूअर है इशिता झा। इशिता का क्वेश्चन है, कैन आई कंटिन्यू टू एंगेज इन फिजिकल एक्टिविटीज लाइक स्विमिंग और एक्सरसाइजिंग व्हाइल डीलिंग विद अ फंगल इन्फेक्शन? Yeah, you can continue doing it, but if you are on treatment, अगर आप ट्रीटमेंट पे है तो यू कैन कंटिन्यू दैट, बट अगर आप ट्रीटमेंट पे नहीं है, सो स्टार्ट ट्रीटमेंट अर्ली। एंड व्हाट आई सजेस्ट, इफ यू कैन अवॉइड फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 7 days, बिकॉज सुपरफिशियल स्किन से जाने के लिए एटलीस्ट 7 days का टाइम तो लगता है। अगर इफ शी कैन अवॉइड, देन इट्स गुड, बिकॉज सी what will happen, it can spread, she can spread it to others also, so she can go ahead with the activity, but she should be on treatment। राइट। रिया साथी है, उनका क्वेश्चन है, व्हाट शुड आई डू इफ द एंटी फंगल मेडिकेशन कॉजेस साइड इफेक्ट्स और एन एलर्जिक रिएक्शन? So yeah, there are few medications like I would like to introduce the name, like terbinafine or grusiopilin. These two medicines are photoallergic. So what we do, we already ask the history. अगर आप धूप में जाते हैं तो आपको कोई रिएक्शन आती है क्या, या आपको कोई रेडनेस होता है क्या, बर्निंग होती है क्या, अगर ऐसे कोई सिम्टम्स है, so we avoid those medications। अगर इनको स्पेसिफिकली कोई एंटी फंगल ट्रीटमेंट्स एलर्जी हो रही है, तो डेफिनेटली she has to stop that। But what is the alternative? She can go ahead with the topical treatment. Topical treatment से कोई एलर्जी very less likely, मतलब इतने एलर्जिक रिएक्शंस नहीं देखे जाते हैं। The duration of treatment will increase, but definitely she will get cured. ओके। डॉक्टर, प्रेग्नेंट लेडीज में या लैक्टेटिंग वुमेन्स में अगेन हम ओरल मेडिकेशन से बचते हैं। ओवर द काउंटर मेडिकेशन तो इज अगेन अ बिग नो नो, स्पेशली फॉर लेडीज हु आर प्रेग्नेंट और दोज हु आर लैक्टेटिंग। तो ऐसे में फंगल इन्फेक्शन अगर है तो क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है? सी, प्रेगनेंसी जो है वो ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट है, उसमें प्रेग्नेंट लेडीज की इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, तो इस स्टेज में फंगल इन्फेक्शन बहुत स्पीडली स्प्रेड हो जाता है। और अगर हम मेडिसिन देखते हैं तो देयर आर मेनी मेडिकेशंस व्हिच आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, जो हम प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। लेकिन अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन को अगर ट्रीट नहीं करते, सो व्हाट विल हैपन, प्रेग्नेंसी में हम उनको मेडिसिन नहीं देंगे, प्रेग्नेंसी मध्ये त्यांना आपण औषध देणार नाही, डिलिव्हरी झाल्यानंतर ना बेबी लहान असेल, बेबी दूध पीत असतात, त्याच्यामुळे पुढचे 6 महिने सुद्धा आपण ट्रीटमेंट देणार नाही। अशा वेळेस बेबीला सुद्धा प्रॉब्लेम होईल आणि प्रेग्नेंट लेडीला सुद्धा प्रॉब्लेम होईल। सो व्हाट वी डू, आम्ही काय करतो, पहिले 3 महिने पेशंटला कुठलंही ओरल मेडिसिन देत नाही, बट 3 महिन्याच्या नंतर ज्यावेळी बाळाची ग्रोथ ही बऱ्यापैकी होऊन जाते, ऑर्गॅनोजेनेसिस जे म्हणतो आपण ते बाळाचं होऊन जातं, त्यानंतर ना काही स्पेसिफिक सेफ ड्रग्स आहेत जे आम्ही स्टार्ट करतो प्रेग्नन्सी नंतर ना। ड्युरेशन थोडा लांबतो, पण डेफिनेटली पेशंटला डिलिव्हरी पर्यंत शी गेट क्युअर फॉर हर फंगल इन्फेक्शन। सो या असं बिलकुलही नाहीये, ही मिथ बिलकुल मोडायला हवी की प्रेग्नेंट लेडीने ट्रीटमेंट घ्यायला नको बिकॉज शी इज प्रेग्नेंट अँड शी विल गेट साइड इफेक्ट्स, असं काहीही होत नाही। देयर आर सेल्फ मेडिकेशंस व्हिच कॅन बी यूज्ड ड्यूरिंग प्रेग्नन्सी आल्सो। ओके।
फारिया बेग हमारे साथ है, उनका क्वेश्चन है, कैन आई कंटिन्यू यूजिंग मेकअप और स्किन केयर प्रोडक्ट्स व्हाइल ट्रीटिंग अ फंगल इन्फेक्शन? Yeah, you can. You can. First, apply your antifungal creams, and then if you're used to your makeup, you can use the things, but don't share it with others. राइट कई बार हम देखते हैं जो मेकअप ब्रशेस या स्पंज जो यूज होता है, वो भी क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली उस तरह से धोए और सुखाए नहीं जाते हैं, तो कई बार उनमें मॉइस्चर रह जाता है, और ऐसे में क्या उनसे भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है डॉक्टर? Yes, हो सकता है. It is possible कि अगर आपको बहुत ज्यादा फंगल इन्फेक्शन है और आप कोई ब्रश यूज कर रहे हैं मेकअप के लिए और वो अच्छे से वॉश नहीं हो रहा है, then it can spread fungal infection. बिल्कुल, तो बहुत ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों का भी ध्यान रखें जिनका इस्तेमाल हम कर रहे हैं अपने स्किन पे, जिनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है, जैसे कि टॉवल हुए, कपड़े हुए, या फिर हमारे मेकअप के जो एप्लीकेटर्स होते हैं, वो भी पूरी तरह से साफ हो, ये भी ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। दो हमने पूरे सेशन के दौरान डॉक्टर डूज़ एंड डोंट्स क्या होने चाहिए इस पर बात की, लेकिन स्पेसिफिकली व्हाट शुड बी द डूज़ एंड डोंट्स इन केस ऑफ फंगल इन्फेक्शन? First of all, we'll discuss what we should do. First thing, if you get itching, just meet your dermatologist. सबसे पहले आपको डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके कंसल्ट करना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए. सेकंड थिंग, रेग्युलरली जर तुम्हाला फंगल इन्फेक्शन असू देत किंवा नसू देत, तरी सुद्धा तुम्हाला हायजीन ही मेंटेन करायला हवी. तुमचे क्लोथ्स तुम्ही सकाळ संध्याकाळ दोन्ही वेळा बदलायला हवे. अंडरगार्मेंट्स शक्य असेल तोपर्यंत कॉटनचे आणि टाईट नसलेले अंडरगार्मेंट्स यूज करायला हवं. ज्यावेळी तुम्हाला खूप जास्त घाम येतोय, इमिजिएटली टेक बाथ, लगेच अंघोळ करायला हवी. जिम मधनं जाऊन आल्यानंतर ना तुम्ही लगेच अंघोळ करायला पाहिजे. स्वेट जास्त वेळ बॉडीवर नको. ह्या गोष्टीची तुम्ही काळजी घेतली पाहिजे. घरी जर कुणाला फंगल इन्फेक्शन असेल तर त्यांचे कपडे, साबण, टॉवेल या गोष्टी वेगळ्या ठेवल्या पाहिजेत. सो दिस थिंग यू हॅव टू डू. अँड व्हॉट यू शुड नॉट डू, फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट टेक ओव्हर द काउंटर मेडिकेशन. त्याच्यामध्ये कधीही स्टिरॉइड हे असू शकतं. सो ओव्हर द काउंटर मेडिकेशन सगळ्यात पहिले टाळा. एक गोष्ट मला अजून सांगावी वाटेल की बरेच जेंट्स पेशंट्स आणि इव्हन लेडीज मध्ये पण एक ट्रेडिशनल थिंग आहे करदोडा घालण्याची. सो दे अप्लाय वेस्ट बँड आणि बऱ्याचदा ज्यावेळी ग्रॉइन एरियामध्ये फंगल इन्फेक्शन असतं, सो तो करदोडा त्यांचा वर खाली असा स्प्रेड होत असतो आणि अकॉर्डिंगली त्यांचं फंगल इन्फेक्शन सुद्धा स्प्रेड होतं. सो जोपर्यंत तुम्हाला इन्फेक्शन आहे अशा कुठल्याही गोष्टी यूज करू नका किंवा यूज त्याचा अवॉइड करा. हे आपल्याला करता येईल. ट्रीटमेंटला व्यवस्थित कंप्लायन्स द्या. जरी तुम्हाला रिझल्ट आले असतील 15 दिवसामध्ये असू देत, 1 मंथ मध्ये असू देत, तरी जर तुम्हाला एक स्पेसिफिक ड्युरेशन तुमच्या डॉक्टरांनी सांगितलं आहे, तर तुम्ही तुमच्या डॉक्टरांना व्हिजिट ही द्यायला हवी. बऱ्याचदा पेशंटला असं वाटतं की आधी तर मॅडमनी गोळ्या दिल्या होत्या, आता मॅडम फक्त क्रीम देत आहे. क्रीमसाठी मॅडमकडे परत कशाला जायचं? सो डोंट डू दॅट. इट इज अ प्रोटोकॉल आणि तो आम्हाला पाळावा लागतो आणि त्याच्यानेच तुमचं फंगल इन्फेक्शन पूर्णपणे क्युअर होणार आहे. सो ट्रस्ट युअर डॉक्टर अँड बी कंप्लायंट विथ हिम और यस. राइट कई बार कंप्लेन करते हैं लोग कि उनको पैरों में फंगल इन्फेक्शन हो रहा है, स्पेशली इन बिटवीन दी टोज, और अगेन मॉनसून में ये बड़ी समस्या होती है. कई बार जूते गीले होते हैं, सॉक्स कई बार अच्छे से नहीं सूखते, और पैरों में पहले तो बहुत ज्यादा बदबू आती है, फिर फंगल इन्फेक्शन भी देखने को मिलता है. तो इससे कैसे बच सकते हैं डॉक्टर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल पैरों में, तलवों में बहुत सारे इन्फेक्शंस कॉमन है. अगर आप बहुत ज्यादा देर तक सॉक्स पहन के हैं, खूप वेळापर्यंत तुम्ही सॉक्स घातले आहे, शूज घातलेले आहे, किंवा तुम्ही सॉक्स तुमचे फ्रिक्वेंटली धुत नाही आहात, किंवा बऱ्याचदा मॉइस्ट सॉक्स म्हणजे धुतलेले आहे पण ते पूर्णपणे वाळलेले नाहीये आणि अशा स्टेजमध्ये तुम्ही घालताय, तर अशा केसमध्ये तुम्हाला फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं तळपायांना. त्या व्यतिरिक्त जर का कुठल्या पेशंट ऑलरेडी फंगल इन्फेक्शन आहे, त्याचं फुटवेअर तुम्ही यूज करताय कधीतरी, तरी सुद्धा तुम्हाला फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं. अशा वेळी बऱ्याचदा लेडीज पेशंट्स असतात ज्यांना बऱ्याच वेळपर्यंत पाण्यामध्ये ते काम करत असतात, कपडे धुत असतात किंवा भांडी घासत असतात, बऱ्याच वेळपर्यंत त्यांना पाण्यात राहावं लागतं. अशा वेळी सुद्धा फंगल इन्फेक्शन होऊ शकतं. तळपायाचं जे फंगल इन्फेक्शन आहे याच्यामध्ये 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे फंगस ह्या असू शकतात. बऱ्याचदा असं होतं की बोटांच्या मध्ये इन्फेक्शन होतं. सो इट इज बिकॉज ऑफ कॅन्डिडा. सो त्या कॅन्डिडल इंटरट्रायगो झाल्यामुळे पेशंटला इन्फेक्शन होतं, ज्याला मराठीच्या लोकल लँग्वेज मध्ये आपण चिखली असं सुद्धा म्हणतो. तर अशा पेशंटनी काय करायचं आहे, अशा पेशंटनी आपले पाय ड्राय ठेवायचे आहे. जरी त्यांना जास्त वेळ पाण्यात काम करायचं असेल तरी सुद्धा ज्यावेळी त्यांचं काम संपतंय, बाहेर आल्यानंतर पाय स्वच्छ धुवून व्यवस्थित कोरडे ठेवायचे आहे. दिस थिंग यू कॅन डू. सेकंड थिंग, एक टिनिया पेडिस नावाची एंटिटी आहे ज्याच्यामध्ये तळपायाला युजुअली एका पायापासून स्टार्ट होतं.
अशाच पद्धतीने आपण डिफरन्शिएट करतो. दोन्ही पाय इक्वली इन्व्हॉल्व होत नाही. कुठल्या तरी एका पायाची स्किन अशी हळू-हळू निघायला लागते आणि अशी गोल-गोल चट्टे यायला लागतात. इन दॅट केस आपण हे डायग्नोज करतो की त्यांना टिनिया पेडिस झालंय. अशा पेशंट्सनी सॉक्स टाळावे. ज्या ओपन चप्पल्स असतात, फुटवेअर असतात त्या यूज करायला पाहिजे. शूज वारंवार घालू नये. ओले सॉक्स तर मुळातच घालू नये. कारण ह्या गोष्टींमुळेच त्यांचं फंगल इन्फेक्शन हे स्प्रेड होणार आहे. आणि ट्रीटमेंटमध्ये बऱ्याचदा काय होतं, पेशंट्सला ज्यावेळी तळपायाला इन्फेक्शन होतं त्यावेळी त्यांना असं वाटतं की सोरायसिस असू शकतं किंवा एक पीपीकेडी नावाची एंटिटी असते ती असू शकते. आणि अशा वेळी ते ओव्हर द काउंटर जाऊन स्टिरॉइड्स तिथे अप्लाय करतात. सो डोंट डू दॅट. कारण अशा वेळी तुमचं इन्फेक्शन कमी न होता परत वाढणार आहे. और मार्केट में एंटी फंगल सोप्स होते हैं, एंटी फंगल डस्टिंग पाउडर्स होते हैं, तो खासकर वो लोग जो थोड़ा प्रोन है फंगल इन्फेक्शन को लेकर, क्या वो इनका इस्तेमाल कर सकते हैं? Yes, depending on your skin. See, what happens, we don't prescribe antifungal powders or antifungal soap to each and everyone. अगर जर कुणाला पूर्ण बॉडीला इन्फेक्शन असेल अशा पेशंट्स मध्ये आम्ही सोप प्रिफर करतो. पण जर कुणाला फक्त इंटररिजनस एरियाज मध्येच इन्फेक्शन असेल आणि त्यांच्या स्किनची टेंडन्सी खूप ड्राय असेल अशा केसेस मध्ये आपण अँटीफंगल सोप देत नाही. कारण काय होतं, अँटीफंगल सोप्सने सुद्धा थोडंफार ड्रायनेस येतं आणि बऱ्याचदा अँटीफंगल तुमचं फंगस जरी ट्रीट झालं तरी ड्रायनेसमुळे तुम्हाला इचिंग होते. सो तुम्ही हे यूज करू शकता जर तुमची स्किन एकदम नॉर्मल असेल, ऑइलीनेस जर असेल स्किन मध्ये, यू कॅन गो अहेड विथ द अँटीफंगल सोप. आणि पावडर येस डेफिनेटली जर तुम्हाला स्वेटिंग खूप जास्त होते, तुम्हाला वाटतंय की आपल्याला फंगल इन्फेक्शन या आधी होऊन गेले, आता जरी आपल्याला नाहीये पण आधी झालेलं होतं, अशा वेळी तुम्ही ऍज अ प्रिकॉशनरी मेजर म्हणून इंटररिजनस एरियामध्ये पावडर हे यूज करू शकता. Okay, doctor. And before we sum up, any take-home message for our viewers, doctor? Yeah, so take home message from my side is, if you feel that you are getting any infection, just don't treat it by yourself. Meet your dermatologist. Hygiene is very, very, very important. Maintain your hygiene because prevention is always better than cure. And use the loose clothes that I can suggest. And yeah, definitely take care of your skin, and then your skin will take care of you. That's really important. Thank you so very much, Dr. Priyanka. It was wonderful talking to you. Thank you for your valuable time, and it has been quite an informative session for our viewers. Thank you. Thank you so much. It was nice meeting to you too. Yeah, thank you. Yeah. Likewise, doctor. And viewers, thank you for your excellent participation. For more information and updates on skin health and care, stay connected on our FB page, all about skin well-being. We are also available on YouTube, Twitter, and Instagram. Thank you. Have a good day to all of you. Goodbye.